Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Students, one of the very important element of a flight control system is the control link. When we talk of control link, we talk of architecture and data buses. Remember, this is a very important topic because without this topic, your flight control is not finished. What we have studied up till now, we have studied the control surfaces, the aerodynamics, which was a repetition of a course which you have already studied. The second part was controlling. That is also something which was not new for you because it was an application of linear control systems. The third thing which I'm going to teach you now, and I have already taught in the previous lecture, we have already studied ARINC 429, its structure, its data, its addresses, how it go about. And just for those who are not there, this information about data transfer is given on page number 160, 161, 162 and 163 of your textbook, which is Automatic Flight Control System by E.H.J. Pellet, right? Remember, it's something very important which you people have to study. Now, let's proceed, and I'm going to send you a series of videos which you guys have to see, and I'm going to give you some quizzes now, right? And all quizzes will be on LMS. Those people who are not on LMS because of any reasons, ensure that their LMS is open. And that's basically the directive of President PFK. So there are no two ways about it. Be very clear about this particular facet. That's okay. So with all this, so far so good. Now I can see the number of participants. Some people, they entered and then they left. This is something which is not good. Okay. Because whoever are here are recorded, and that will be your attendance. So we are going to introduce what architecture and buses are, what is an analog versus digital architecture, what are data buses, and what are modular architecture. And then obviously the time is too less. We won't have time for exercises anyway. Now this view graph basically reflect evolution of avionic architecture. You see, in the initial days, before 60s, there was no electronics. I mean, the aircraft was totally mechanical. Okay. But when the electronic was embedded in the system, that was the time that we had a distributed analog architecture. लेकिन distributed analog architecture क्या होता है कि हर चीज से connected होती है. Let's say अगर मेरे कमरे में 10 devices हैं, एक कंप्यूटर रखा हुआ है, एक लैपटॉप है, एक एयर कंडीशनर है, एक टेलीविजन है, और अगर मैं उसको कंट्रोल करना चाहूँ तो हर एक के तार मेरे पास आएंगे और हर चीज दूसरे से कनेक्टेड होगी. ठीक है, तो हर चीज को सही करने के लिए यानी हमें बेसिकली उसका आर्किटेक्चर भी पता होना चाहिए और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी पता होना चाहिए. अब यहाँ तक बसेस का कॉन्सेप्ट है. तो जो इनिशियल स्ट्रक्चर थे वो इसीलिए मैसी भी थे और बल्कि भी थे. बिकॉज अगर
एक एयरक्राफ्ट के अंदर आपका रेडार लगा हुआ है, फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर लगा हुआ है, नेविगेशनल एड्स लगी हुई हैं. So they were all interconnected to each other, right? Then what happened? The second thing was distributed digital architecture. I mean, that came somewhere in 1970s. In 60s, you had this. जहाँ ये आपको मेरा एरो नजर आ रहा है, ठीक है? This was the place which was distributed analog architecture. Then it came to distributed digital architecture. So what did distributed digital architecture did? It basically sent the data on the data buses, right? And the first of the kind is ERINC 429, जिसका हमने आर्किटेक्चर पढ़ा था, ठीक है ना? वो भी मैं आपको दोबारा एक रिफ्लेक्शन दिखा दूंगा, इसलिए कि बहुत से बच्चे जो नहीं थे उन्हें पता चल जाए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और बाय द वे इससे रिलेटेड चीजें एग्जाम में आएंगी भी, अभी से बता रहा हूँ, ठीक है? तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड, डोंट टेक इट वेरी लाइटली. So that was in 1970s and still it is there. तो फायदा क्या हुआ कि आपकी बल्कनेस कम हो गई, और कैन यू सी दिस एरो, यानी योर वेट डिक्रीज्ड, द वॉल्यूम डिक्रीज और द पावर कंजम्पशन आल्सो डिक्रीज, और द वायरिंग भी कम हो गई, यानी सारी चीजें कम हो गई. एंड फ्रॉम हियर देन यू केम टू फेडरेटेड डिजिटल आर्किटेक्चर, ठीक है? अब देखिए फेडरेटेड डिजिटल आर्किटेक्चर में 1553 भी आ गई, ठीक है, जो F16 में लगी हुई है. ये 1773 भी आ गई, और भी हल्की होगी इसलिए कि फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर है, ठीक है? आपकी स्पीड्स तेज होती चली गई, ठीक है? एंड ये आर्किटेक्चर्स अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं, अपने मॉडिफाइड फॉर्म में इस्तेमाल हो रहे हैं. और इसमें ये होता है कि एक कंट्रोलर होता है, मतलब जैसे कि एक टीचर क्लास में डायरेक्टर होता है या कंट्रोलर होता है. आप क्लास में साथ वाले बच्चे के साथ बात नहीं कर सकते, वरना टीचर आपको टोक देगा फौरन, व्हाई आर यू टॉकिंग. अगर आपको बात करनी भी है तो आप टीचर से पूछते हैं, सर क्या मैं इससे बात कर लूँ, या आपको कंपनी से बाहर जाना है, कैन आई टॉक, ठीक है? या इमरजेंसी कॉल आ गई, तो यू रियली हैव टू अप्रोच द फेडरेशन, एंड द फेडरेशन commands all the modules. So what happens? You have basically a single bus here. Can you see? You have a single bus here, and all your line replaceable items are connected to this. Okay? Even your jamming pods and your missiles, your fuel tanks. So everything is connected through a link which is further linked to your basic bus. But there is one controller here. ठीक है? अभी मैं ज़्यादा चीज़ें यहाँ इसलिए नहीं बता रहा कि अभी हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जब डिटेल्स आएंगी तो भी कवर. तो आप देखिए 60s में you have distributed analog, 70s में you had distributed digital architecture, 80s में आप federated digital में आ गए, और 90s में यू स्टार्टेड विद इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर. अब आप का जो बस 1310 आ गया, ठीक है, यानी और बेहतर किस्म की बसेज आनी शुरू हो गई, और उसकी जो कैटेगरीज है, एक मैंने आपको 1310 बता दी, बाकी फिर बाद में बता दूँ. इसमें क्या होता है कि ये मॉड्यूलर अप्रोच पे होता है, और हर मॉड्यूल बादशाह होता है टिल द टाइम द लास्ट मॉड्यूल इज अलाइव. The system does not fail, ठीक है? और आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं. तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंटर मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, ठीक है? अब आप देखिए ओवर अ पीरियड हो क्या रहा है, आपका वेट डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रही है, पावर कंजम्पशन कम हो रही है, वायरिंग कम हो रही है. इंक्रीज क्या चीज हो रही है? परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, कंप्यूटिंग बढ़ गई, power cost complexity and reliability, ये सब चीजें यहाँ बढ़ती चली गई. यहाँ इनिशियली आपकी पावर कम हो रही थी, लेकिन इधर पावर फिर ज्यादा बढ़ गई. लेकिन
at the cost of nothing bad, because you are having more performance. आपकी कंप्यूटिंग स्पीड तेज होगी, सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी का जो के बार्गेन में जो अच्छी चीज मिली वो क्या मिल गई आपको? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है फुलफिलमेंट ऑफ अ प्रॉमिस, ठीक है। तो दिस इज एन एवोल्यूशन ऑफ एवियोनिक आर्किटेक्चर। एवोल्यूशन का क्या मतलब होता है? इर्तिका, यानी किस स्टेज से, जैसे डार्विन थियरी ऑफ एवोल्यूशन है कि पहले इंसान जो था अमीबा था, फिर कीड़ा बन गया, फिर वो बंदर बन गया, फिर बंदर से बदमानुस बन गया, फिर इंसान बन गया, यू नो, डार्विन स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, which as Muslims we don't believe, but anyway, एवोल्यूशन का मतलब, या आप जब एक सिस्टम में आते हैं बिल्कुल रॉ होते हैं, and by the time you go out of the system you evolute to become good engineers, ठीक है। so this is evolution of your avionic architecture, ठीक है। अब ये पहला आ गया distributed analog architecture, 1950s and 60s में it started, lot of wire and no bus, very difficult to modify, electromechanical parts होते थे, heavy large space, many pieces, ठीक है। और ये कहाँ यूज होता था? बोइंग 707, VC-10, DC-9, बोइंग 737, और ये पुराने जहाज हैं जो बेसिकली क्या इस्तेमाल करते थे? डिस्ट्रीब्यूटेड एनालॉग आर्किटेक्चर, ठीक है। उसके बाद अब आप आ गए डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल आर्किटेक्चर। डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल आर्किटेक्चर में अब आपके वेपन्स आ गए, रेडार आ गया, नेविगेशनल एड्स आ गई। So it was basically used on military as well as civilian architecture, ठीक है। और इसके अंदर क्या चीज आ गई? एरिंक 429, जो अब तक इस्तेमाल होती है बिकॉज ऑफ इट सिंप्लिसिटी, यानी why it is used because of its simplicity। और इवन हमारी जो एवियोनिक लैब है उसके अंदर भी आपके पास एरिंक 429 का एक पूरा सेटअप मौजूद है, ठीक है। तो अब ये क्या करता है? डिजिटल सिस्टम, हैवी, स्लो, डिफिकल्ट टू रीप्रोग्राम, ठीक है। ईच कंपोनेंट कंटेन इट्स ओन कंप्यूटर एंड मेमोरी, यूजेस बसेस बिटवीन द कंपोनेंट, वायर कम हो गया आपका, एक एडवांटेज। ईच यूनिट हैज डेडिकेटेड फंक्शन, लेकिन इसको एक्सपेंड करना मुश्किल है। अब आपके जहाज मॉडिफाई होने शुरू हो गए, सी हैरियर्स, टॉर्नेडो, बड़े अपने जमाने के एडवांस जहाज थे, क्योंकि इसके अंदर एरिंग 429 आर्किटेक्चर इस्तेमाल होता है। नाउ कम फेडरेटेड डिजिटल आर्किटेक्चर, ठीक है। इसमें आपका एक बस कंट्रोलर होता है, और अब आप देखिए इसमें आपको क्लियरली नजर आ रहा है ये आपका 1553B मिशन है, ठीक है। 1553 मिशन बस यहाँ मौजूद है, ठीक है। अब इस सिस्टम में क्या होता है? कम्युनिकेट वाया 1553B बस, जो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। एडिशंस आर इजी, only requires the bus controller to be reprogrammed, ठीक है। और can employ many buses to separate a common equipment, यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इस्तेमाल होता है, F-18 में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसका अपना माइक्रो कंट्रोलर होता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ टिपिकल 1553B आर्किटेक्चर, ठीक है। एंड देन यू हैव अ वेपन बस, ठीक है। यानी आप देखिए 1553B की डिस्प्ले बस भी है, मिशन बस भी है, वेपन बस भी है। तो आप एक से ज्यादा भी 1553B इस्तेमाल कर सकते हैं इन अ पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ तक किसी को पूछना है? नो सर। आगे चलते हैं। अब ये आ गया इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। अब इसके अंदर क्या है कि आपकी कैबिनेट्स होती हैं, उन कैबिनेट्स पे आपके मॉड्यूल लगे होते हैं। कॉमन मॉड्यूल यूसेज होता है, यानी ऐसा हो सकता है कि जैसे ये और ये यहाँ भी मिलेंगे और यहाँ भी मिलेंगे, ठीक है। और ये वाला भी आपको मुख्तलिफ जगहों पे मिल जाएगा। तो इसके अंदर क्या है कि थिंग्स आर इंटरचेंजेबल, ठीक है।
मॉड्यूल्स कैन रियलाइज डिफरेंट सिस्टम फंक्शन, यानी एक ही मॉड्यूल से आप कई फंक्शन ले सकते हैं, यानी उसी मॉड्यूल से आप सिमुलेटेड रेडार का फंक्शन भी ले सकते हैं, फ्लाइट कंट्रोल का भी ले सकते हैं, वो एक दूसरे को रिप्लेस भी कर सकते हैं और एक दूसरे के स्टैंड बाय भी हो सकते हैं। तो यहाँ क्या होती है, रिडंडेंसी बढ़ जाती है और परमिट ऑन बोर्ड रिपेयर स्वैप एंड कैन ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर। लेट्स से देखिए ये आपका एक जैसे कहते हैं लाइन रिप्लेसेबल यूनिट है, एक लाइन रिप्लेसेबल यूनिट है। लेट्स से ये रडार को लुक आफ्टर कर रहा है और ये आपके फ्लाइट कंट्रोल को लुक आफ्टर कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर कुछ स्पेयर मॉड्यूल्स भी हैं। लेट्स से ये वाला स्पेयर है, ठीक है, इसका ये वाला खराब हो जाता है, इसमें स्पेयर आपके पास नहीं है, तो क्या करेगा, इसका स्पेयर जो है थ्रू अ बस कनेक्शन इसका काम करना शुरू कर देगा, तो स्वैप हो जाएगा, ठीक है, विदाउट फिजिकली डूइंग इट। तो जहाज आपका जब लैंड कर जाएगा आप खराब वाला मॉड्यूल निकालेंगे और नया वाला लगा देंगे, उसको रिपेयर के वास्ते फैक्ट्री भिजवा देंगे। तो दिस इज बेसिकली द एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो हमारे पास कितने किस्म के आर्किटेक्चर्स आ गए, 4। ठीक है, Yeah. डिस्ट्रीब्यूटेड एनालॉग, डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल, फेडरेटेड डिजिटल और इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर। में सबसे बेहतर कौन सा है, इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर। और इसके बाद जीएग और फायरवॉल Integrate. आर्किटेक्चर्स हैं जो हम आपको बाद में बताएंगे। नाउ विद दिस लेट्स सी कि डेटा बसेस किस किस्म के जहाज़ों में इस्तेमाल होती थी और उनकी क्या जिसे कहते हैं क्वालिफिकेशंस हैं या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले ये आ गई, ये क्या लिखा हुआ है, एरिंग 429। ठीक है, आप इसका डेटा रेट देखें क्या है, 100 किलोबिट्स पर सेकंड, 100. विच इज वेरी लेस। ठीक है, लेकिन उस जमाने की ये सबसे ऊंची चीज थी। ये कौन सा आर्किटेक्चर है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल आर्किटेक्चर, और ऊपर आ गए 1553। ठीक है, अब आप देखिए इसकी 100 किलोबिट थी, इसकी 1 मेगाबिट है, और ये किस में यूज होता है, F-16 में यूज होता है, वेरी वाइडली यूज्ड इन मिलिट्री कम्युनिटी। ठीक है, और ये JF-17 में भी इस्तेमाल होता है, जो अभी का बना हुआ है, क्योंकि आप उससे अच्छी बस भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन जितनी अच्छी इस्तेमाल करेंगे उतनी महंगी होगी। अब आप देखिए राफेल और टाइफोन, अब और एडवांस जहाज आ गए, इसके अंदर स्टेनैग 3910 इस्तेमाल हो रही है। अब ये देखिए इसका रेट क्या है, 1 मेगाबिट पर सेकंड, इसका रेट क्या है, 20 मेगाबिट्स पर सेकंड। आप देखिए 20 टाइम्स रेट बढ़ गया। फिर उसके बाद आपकी हाई स्पीड डेटा बसेस आ गई, विच वॉज बेसिकली द GIAG, यानी जॉइंट अमेरिकन फोर्सेस ने एक अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि F-22 एयरफोर्स को चाहिए था, ठीक है, और आर्मी को आपको एक बहुत एडवांस किस्म का हेलीकॉप्टर चाहिए था, आर्मी को कुछ और चाहिए था, नेवी को कुछ और चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि हम अलग अलग काम करें, लेट्स वर्क ऑन अ कॉमन थिंग विच वाज नोन एज GIAG। ठीक है, और ये क्या इस्तेमाल करते थे, हाई स्पीड डेटा बसेस, वो के ये प्रोजेक्ट फ्लॉप प्रोजेक्ट थे, लेकिन स्टिल उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। जी, एनी क्वेश्चंस? No, sir. No, sir. अच्छा, अब आप देखिए तो ये क्या इस्तेमाल कर रहा है, हाई स्पीड डेटा बसेस। ये 20 था, ये कितना हो गया, 80 मेगाबिट्स पर सेकंड, मतलब अ फिनोमिनल जंप। यानी कहाँ 100 किलोबिट्स थी, ये 1 मेगाबिट बहुत ज्यादा लगती है 1553B के लिए। स्टेनैग 3910 बस के ऊपर 20 मेगाबिट्स आ गई, हाई स्पीड डेटाबेस बस इससे भी 4 गुना बढ़ गई। ठीक है ना, अगर आप इस पॉइंट से देखें 1553B से, तो 80 गुना बढ़ गई हाई स्पीड डेटा बस। फिर आपका IEEE 1394 आ गया। ठीक है,
which is 800 megabits per second. And then come your fiber channels FCAE1 जो 2 गीगाबिट्स पे काम करता है, ठीक है। और ये कहाँ यूज होता है, ये देखिए ये यूज होता है F35 पे, F18 E ऑब्लिक F पे, F16 E जो हमारे पास F16 का वर्जन है वो CD वर्जन है। ए भी आया था, बाद में ब्लॉक अपडेट से CD हो गया, ठीक है। जो 1553 भी अभी भी इस्तेमाल करता है, ये 1553 भी लिखा हुआ है, ठीक है। जबकि ये वाला आर्किटेक्चर फाइबर चैनल FCAE1 इस्तेमाल करता है, जो 1 to 2 गीगाबिट्स, इट्स वेरी 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 हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस, ठीक है। सिंक्रोनस क्या होता है, कम्युनिकेशन रिक्वायर्स अ क्लॉक सिग्नल टू सिंक्रोनाइज द ट्रांसमीटर विद द रिसीवर, ठीक है। एंड इट्स मोर कॉम्प्लेक्स, दस मोर कॉस्टली, फास्टर देन एसिंक्रोनस, जो अगली साइड में आने वाली है, ठीक है। लेकिन स्पीड इसकी क्या होती है, फिक्स स्पीड होती है, इसके ऊपर ये काम करता है। Asynchronous communication does not require a separate clock. The timing data is in the data. The receiver and the transmitter do not need to be synchronized. Slower because of time loss. और फिर चीज ये है कि it is slower because of time lost in encoding the timing signal in the transmitted data. बहुत सस्ता होता है और वेरिएबल स्पीड्स होती है इसकी। अब ये देखिए, ये आपकी मैनचेस्टर कोडिंग है, ठीक है। Now, how does a Manchester coding work? कि this is, ये सबसे ऊपर क्या है, ये आपकी क्लॉक है, आ रही क्लॉक नजर आपको, this is a clock. Yes, sir, clock. And this is your signal 101 00 111 001, ठीक है। अब क्या होगा, क्या आप देखिए कि जब ये मतलब क्लॉक आएगी, ठीक है, पहली क्लॉक आएगी, तो ये आपका सिग्नल जो है इस क्लॉक के हिसाब से इट विल गो है, बट इट विल नॉट चेंज टिल द टाइम द अदर क्लॉक कम्स इन, ठीक है। तो क्लॉक इज बेसिकली कंट्रोलिंग योर bipolar data. It's a bipolar data but controlled by the clock. It's very simple. यानी ये आपकी जो एक पूरी पल्स है ये 1 काउंट कर रही है, ठीक है। यानी हाई से शुरू होके लो पे आ रही है। अब जब ये लो पे आया, यानी सेकंड में, तो ये क्लॉक आ गई, अब ये वाली टॉगल होके लो पे चली गई। नाउ दिस इज अ पल्स टिल है, फिर आपकी पल्स आ गई, ये हाई थी, फिर ये टॉगल हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जीरो आ गया, तो दिस इज दिस पल्स अगेन, फिर जीरो आ गया, दिस पल्स अगेन, ठीक है। The end did बना है बिल्कुल, एंड देन वन कम्स, अब देखिए ये पल्स आ गई, फिर ये पल्स आ गई, फिर ये पल्स आ गई। अगर ये वन वन, अगर लेट्स से ये टोटल वन होता ना, तो ये बिल्कुल यही चीज रिपीट हो जाती है, लेकिन Yes. ये क्या करता है, ये टॉगल करता है, ठीक है ना। सो दिस इज नोन एज मैनचेस्टर कोडिंग। ये सबके समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। No, sir. और साफ लिखा हुआ है कि ट्रांजिशन, ठीक है, एंड लैचेस बिटवीन Let's एंड क्लॉक से करता है, ठीक है। इट हैज टू बी डन विद द हेल्प ऑफ अ क्लॉक। अब आप इसको पढ़ लें, एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि परमिट द फिर इसका क्लॉक। नाम मैनचेस्टर क्यों है? अब ये नहीं पता क्यों है, एज पर जी थॉम, ये एग्जैक्टली नहीं Okay. पता। हो सकता है जहाँ जिस बंदे ने याद किया वो मैनचेस्टर में रहता हूँ, उसने इसको मैनचेस्टर कोडिंग कर दिया। ये किताब में देखूंगा, हिस्ट्री होगी, इट डजंट मैटर, कराची कोडिंग, Okay. ठीक है। कराची में अगर आप कोई काम करें जो पाकिस्तानी करते ही नहीं, आप कह दें कराची, मैनचेस्टर इज अ सिटी इन क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, ठीक। तो हो सकता है वो यानी उस शहर का रहने वाला हो या वहाँ की यूनिवर्सिटी हो, यानी अभी मैं जो बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं, एंड दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि यानी मैनचेस्टर कोडिंग क्यों कहते हैं, लेकिन एनीवे आई विल फाइंड आउट फॉर यू।
बट आई जस्ट हैव टू गूगल इट, मुझे पता चल जाएगा क्यों मैनचेस्टर कोडिंग कहते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि मैनचेस्टर कोड क्या होता है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा कल। अच्छा, permit the clock and the data signal to be transmitted simultaneously, helpful during long period of no transmission। देखिए इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपके मैनचेस्टर कोडिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि सिग्नल के अंदर क्लॉक मौजूद है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब आपकी बिट्स चेंज होती हैं तो इसका मतलब क्लॉक उसको बता रहे हैं। योर क्लॉक इज एम्बेडेड इन द सिस्टम। क्या कह रहे हैं? परमिट द क्लॉक एंड द डेटा सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली। देखिए ना, ये आपका डेटा है, इसमें तो कोई क्लॉक नहीं है। 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1। अब आप देखिए कि इस पर्टिकुलर जगह पे चूंकि ये हाई है, जब उसको ये ट्रांजिशन हुई तो उसने आपको एक हाई क्लॉक दे दी, ठीक है। अगली दफा जब 0 आया उसने क्लॉक की पोजीशन चेंज कर दी, फिर जब 1 आया फिर उसने क्लॉक को 1 पे ले आया, फिर 0 आया फिर इधर वापस आया। यू सी द क्लॉक इज हियर। फिर 0 आया तो दोबारा क्लॉक आ गई आपके पास। यू सी यू हैव 2 ऑफ द सिग्नल हियर। अब 1 आ गया तो टॉगल कर दिया, फिर यूनिट चेक, अब ये आपकी पूरी क्लॉक आ गई। तो आपकी क्लॉक इज प्रिजर्व। लेट्स से अगर ये पूरा सिग्नल 1 होता तो फिर क्या होता है, यही चीज नीचे आ जाएगी। लेकिन फर्क क्या होता, अब इसमें और इसमें एक फर्क होता है। फर्क ये है कि नाउ दिस इज नॉट अ बाइपोलर क्लॉक। ये वैल्यूज क्या है? 0 एंड 1। यहाँ क्या है? यानी इट इज स्विंगिंग अराउंड 1, इट इज अ बाइपोलर सिग्नल। ये बात सबके समझ में आ गई? यस सर। उसके बाद permits the clock and the data signal to be transmitted simultaneously। अच्छा, बाय द वे इसको भी बायपोलर कह सकते हैं। ये रिटर्न टू 0 है, ये बायपोलर नॉन रिटर्न टू 0, ठीक है ना। इट ऑलवेज रिटर्न्स टू 0, ठीक है ना। अल्टीमेटली ये सिग्नल दिस रिटर्न्स टू 0 एंड दिस डज नॉट बाय रिटर्न टू 0। ये दिस इज जैसे ये आपकी क्लॉक है, इसमें ये क्लॉक आपकी ये देखें 0 पे से रिटर्न नहीं किया। दिस इज रिटर्न टू 0, दिस इज नॉन रिटर्न टू 0, नॉन रिटर्न टू। वो जो आपको पढ़ाया जाता है। ये मतलब इट्स ऑल वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट। So a bit is transmitted in each period. A 0 is denoted as a low to high transition, and 1 is denoted a high to low transition. The bit transition arrive in the middle of the period. Transition at the beginning of the transition do not signify a data. It's so clear. It is, matlab, this is what is Manchester coding, or it is shown and explained in a very beautiful way. इस पे कोई सवाल पूछना है? नो सर। Great. आगे चलो। Manchester on a twisted pair sends the value of the signal on one wire and its complement on the other. Since both wires are susceptible to the same interference EMI जो हमने cover किया था इसमें, the receiver can simply subtract the common offset to remove the noise। अभी अगले डायग्राम में ये चीज क्लियर भी हो जाएगी। The component that are different, the signal is subtracted to increase the power and the signal strength। देखिए अब यही बात है, ये यहाँ क्लियर आ गई आपको। देखिए what happens, देखिए ये एक सिग्नल ये है आपका, ठीक है, और इसका इन्वर्जन ये है, यानी ये ऑलरेडी मैनचेस्टर कोडेड सिग्नल है, ठीक है। और इसका जो आप अगर इसको नॉट गेट से निकाल देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यानी अगर यहाँ 0 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, अगर यहाँ 1 है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी यही सिग्नल जो बेसिकली यहाँ दिखाया था, ये सिग्नल से फीड कर दिया और दूसरा इसका रिवर्स कर दिया। अब ये ट्विस्टेड वायर्स है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर नॉइज आएगा तो लेट्स से
इस जगह भी ये नॉइज आ जाएगा और यहाँ नॉइज ऐसे आ जाएगा, यहाँ मेरी उंगली आ रही, ठीक है, बिकॉज यहाँ ये इसका एनोटेट काम नहीं कर रहा, वरना मैं कल काम कर रहा था, आज एनोटेट पे काम कर रहा हूँ, नहीं आज। लेट मी क्लोज दिस। तो आप समझिए एक सिग्नल यहाँ आ रहा है और एक सिग्नल यहाँ आ रहा है, ठीक है। इस सूरत में एक सिग्नल यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रही है, मैं क्या बना रहा हूँ, नॉइज। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक वैसे ही रहेगा, एक उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको उल्टा करेंगे तो ये बिल्कुल यही बन जाएगा, और जो नॉइज होगा, यानी क्योंकि नॉइज दोनों पे एक ही जगह पे आया तो एक नॉइज उल्टा हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नॉइज गायब हो जाएगा और ये सिग्नल और ज्यादा एम्पलीफाई हो जाएगा। अब आई बात समझ में? अब उसे अलग अलग करके ही बता दिया कि ये सिग्नल आ रहा है, ये आपका नॉइज आ यस रहा है। सर। तो अब अगर नॉइज दोनों पे एक सा आ रहा है, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो जीरो हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो फर्दर ऐड हो जाएगा। तो ट्विस्टेड मैनचेस्टर कोडिंग वाला सिस्टम जो है ट्विस्टेड पेयर पे जाता है, और एक में एक लाइन में सिग्नल होता है और दूसरा उसका इन्वर्टेड सिग्नल होता है, ठीक है। और फिर जब आप उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी सब्ट्रैक्शन क्या होती है, डिजिटल सब्ट्रैक्शन क्या होती है कि आप उसको इन्वर्ट करके और ऐड कर देते हैं, ठीक है। यानी एडर और सब्ट्रैक्टर में फर्क क्या है, मतलब एडर में अगर आप 1 और 1 दें तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है, और अगर आप 1 एंड 0 देंगे तो 0 मिल जाएगा आपको। यानी अगर ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, सॉरी। अगर आप, मैं यस एंड की बात करूं, एंड गेट में अगर 1 एंड 1 देंगे तो आउटपुट पे 1 मिलेगा, और 1 एंड 0 देंगे तो आउटपुट पे 0 मिलेगा। तो आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट द एडर, नॉट एंड गेट। तो दिस इज बेसिकली अ सब्ट्रैक्टर। रिमेंबर, एवरी सब्ट्रैक्टर इज एन एडर। आप करते क्या है कि एक सिग्नल ऐसे देते हैं और दूसरे को इन्वर्ट कर देते हैं और फिर ऐड कर लेते हैं। दैट इज हाउ इट इज सब्ट्रैक्शन। लेट्स से अगर आपके पास 1 और 1 है, अगर आप एडर में देंगे तो आउटपुट क्या होगी, 2 आएगी, लेकिन अगर सब्ट्रैक्टर देंगे तो 0 आएगी। तो आप क्या करेंगे, आप जिसे कहते हैं 1 लेंगे और साथ में आप क्या कहते हैं दूसरा 1 लेंगे। 1 को जब इन्वर्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा, -1 और +1 क्या होगा, दैट विल बी 0, ठीक है। जी। तो रिमेंबर कि डिजिटली एवरी सब्ट्रैक्टर इज एन एडर, जिसमें आप करते क्या है कि एक सिग्नल को इन्वर्ट करते हैं और फिर आप उसको दूसरे से ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो नॉइस की सूरत में क्या होगा, नॉइस को जब आप इन्वर्ट करेंगे तो ये इसका 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाएगा। जब आप इसको दोबारा ऐड करेंगे तो आपको आउटपुट पे 0 मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ट्विस्टेड पेयर का, ठीक है। इससे कि यस सर। नॉइज दोनों में एक ही तरह से आएगा। अब हम चलते हैं आगे। This is a typical structure of मिल स्टैंडर्ड 1553B। मिल स्टैंडर्ड 1553, अब देखिए ये आपकी बस ए है और ये बस बी है, ठीक है। एंड दिस इज कंट्रोल्ड बाय अ बस कंट्रोलर। Why it is known as a federated architecture? Because it is centrally controlled by the system. इसके बाद तुम लोग की रेडार की क्लास है फौरन। हेलो, सर शायद फॉरन नहीं है। ठीक है, फिर बता दो। हाँ बताओ। यस सर, फौरन। फॉरेन ही है ना, हाँ फॉरन है। ओके। अच्छा, ये आपके समझ में आ गई बात, यस सर, इसके ठीक बाद है। देखिए एक जल्दी से आपको एक इसकी मैं एरो कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक है। दिस इज योर बस कंट्रोलर, ठीक है। ये आपके रिमोट टर्मिनल हैं, ठीक है। सो यू हैव अप टू 30 रिमोट टर्मिनल, यानी यानी एक, जैसे ये आपका जो रिमोट टर्मिनल है वो, यानी 1553B पे आप अप टिल 30, यहाँ 30 लिखा है लेकिन अप टिल 32 आप रिमोट टर्मिनल्स लगा सकते हैं, ठीक है।
और इस रिमोट टर्मिनल के ऊपर इस रिमोट टर्मिनल के ऊपर आपका रेडार लगा होगा, इस रिमोट टर्मिनल पे आपका फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर लगा होगा, अगले रिमोट टर्मिनल के ऊपर लेट से आपका ऑल्टीमीटर लगा होगा, अगले रिमोट टर्मिनल पे आपका रेडार इलेक्ट्रो ऑप्टिकल यूनिट लगा होगा, फिर अगले रिमोट टर्मिनल पे आपका चेफ डिस्पेंसर लगा होगा। तो जितने भी रिमोट टर्मिनल्स हैं दे आर बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द बस कंट्रोलर। लेकिन आप ये देखिए आपके पास खाली एक बस लेन है, तो इट इज नॉट जम्बल्ड like your distributed digital architecture या क्या कहते हैं एनालॉग डिस्ट्रीब्यूटेड एनालॉग आर्किटेक्चर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल आर्किटेक्चर में तो बस होती है, वो मैंने मेरे मुंह से निकल गया, इट्स नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल आर्किटेक्चर, इट इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एनालॉग आर्किटेक्चर, जिसमें हर डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्टेड होती है। फॉर यानी जस्ट टू शो यू, जो लेट कमर्स थे उनको, ये जो पहला वाला है ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनालॉग आर्किटेक्चर है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल आर्किटेक्चर है जहां बसें सबसे पहले बन गई थी, फिर ये आपका फेडरेटेड डिजिटल आ गया, और फिर आपका इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर आर्किटेक्चर आ गया। ठीक है, दिस वाज द बल्किएस्ट ऑफ ऑल। इसमें क्या हो गया, आपका वेट काफी हद तक रिड्यूस हो गया। ठीक है, और बाय द वे जो शुरू वाले डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल आर्किटेक्चर्स थे उसके अंदर फर्क इनमें बस यही था कि यहाँ एनालॉग था, यहाँ डिजिटल था, लेकिन बाद में फिर जब एरिंग 429 आई तो वो भी 70s की बस है जो यहाँ शो होती है। ये फिर प्योर बस आर्किटेक्चर्स आ गए जो अभी हम 1553 भी देख रहे थे, और ये हमारा इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर आर्किटेक्चर जो हमने सबसे आखिर में आपको बताया था। ठीक है, हमारे पास 4 मिनट रह गए। ये बात सबके समझ में आ गई। तो यू हैव अ बस, you have a central bus controller, and then you have remote terminals, or you can have up till 32 remote terminal। यहाँ आपको 30 लिखा हुआ है, लेकिन प्रिसाइसली मुझे पता है कि 1553B में 32 रिमोट टर्मिनल्स लग सकते हैं। ठीक है, और लेट से अगर आपको एक्सपेंड करना है, लेट से ये आपके पूरे 32 ये 1 से लेके 32 कंप्लीट हो गए और आपको और लगाना है, तो फिर आप इस रिमोट टर्मिनल के ऊपर एक और बस लगा दें, अब आप में 32 और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन अब यानी अगर आप लेट से ये पूरे का पूरा जो आर्किटेक्चर है उठा के इसके साथ लगा लें, यानी ये जो ए बी बस है ये बेसिकली इस रिमोट टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो ये इसका जो बस कंट्रोलर है वो अपने 32 टर्मिनल्स को करेगा, और ये जो है ये बेसिकली क्या करेगा, अपने 32 को करेगा, जिसके अंदर दिस विल बी वन ऑफ इट्स रिमोट टर्मिनल, जिसके साथ आपने 1553 भी अलग लगा दी। लेकिन आपके पास जो कैपेबिलिटी क्या आ गई कि आप 32 से 64 पे जंप कर गए। ये बात सबके समझ में आ गई, क्लियर हो गई कि इसमें कोई एम्बिग्युइटी है? यस सर। अच्छा, ओके। अब आप note that the module can नो be सर, both क्लियर। note that a module can be both a bus controller and a remote terminal। ठीक है, सो अब आप ये देखिए इस पर्टिकुलर, इट्स अ टिपिकल एग्जांपल, ये आपका नैव मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, और जहां आरटी लिखा है ना वो रिमोट टर्मिनल है। ठीक है, तो आपका जो नेविगेशन मैनेजमेंट सिस्टम है इस पर्टिकुलर केस में आपने उसको बस कंट्रोलर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो अब यही बता रहे हैं कि नोट आप कर लें कि एक मॉड्यूल भी बस कंट्रोलर हो सकता है और साथ में एक रिमोट टर्मिनल भी हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर केस में आप यहाँ देखिए, यहाँ आपका फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर है तो ये बस कंट्रोलर। ठीक है, और इसके साथ आपके बहुत सारे यानी मल्टी फंक्शन डिस्प्ले लगे हुए हैं, हेड अप डिस्प्ले लगे हुए हैं। ठीक है ना, फायर कंट्रोल रेडार लगा हुआ है। ठीक है, फिर एसएमएस, ठीक है, स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज आल्सो अ बस कंट्रोलर।
तो यानी इन सब के साथ 30 यानी अप टिल 32 तक ये लोग जा सकते हैं एंड देन इट विल बी कंट्रोल्ड बाय अ सेंट्रल बस कंट्रोलर. ठीक है. तो देखिए फेडरेशन में और कन्फेडरेशन में फर्क क्या होता है. पाकिस्तान इज अ फेडरेशन यानी इस्लामाबाद कंट्रोल्स ऑल द प्रोविंसेस. ठीक है. अमेरिका इज अ कन्फेडरेशन यानी ट्रम्प हैज नो पावर्स ऑन गवर्नर्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड फाइनेंस. दैट्स इट. बाकी चीजों में उनकी अपनी लॉज हैं. ठीक है. कन्फेडरेशन में कुछ चीजें हैं आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं और ज्यादातर चीजें किसी और के पास होती हैं. ठीक है. दैट इज योर कन्फेडरेशन. फेडरेशन का मतलब सेंट्रल कंट्रोल होता है. तो 1553 बी को हम क्या कहते हैं. फेडरेटेड कंट्रोल बस. ठीक है. बिकॉज आपके पास एक बस कंट्रोलर होता है और इसमें आपको वो ये बता रहा है कि बस कंट्रोलर कैन बी वन ऑफ द रिमोट टर्मिनल्स. जैसे कि मैंने आपको पिछली एग्जांपल में बताया था कि अगर आपको ज्यादा मतलब रिमोट टर्मिनल्स चाहिए तो जो आखिरी रिमोट टर्मिनल होता है उसके साथ आप 1553 भी बस लगा दें. ठीक है. तो हम यहाँ ख़त्म करते हैं. जैसे किसी वक्त भी ये ऑफ हो जाएगा. ठीक है. एंड लेट्स सी यू आफ्टर अ मिनट. ठीक है. और अगर कोई क्वेश्चंस हैं फील फ्री टू आस्क. ठीक है. तो इंश्योर के यू आस्क मी क्वेश्चंस. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह